everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. Today we're gonna start with your reasoning class. और reasoning में हम LVD पढ़ने वाले हैं. LVD आपका है logical Venn diagram. L stands for logical, V stands for Venn and D stands for diagram. तो लॉजिकल वेन डायग्राम हम डिस्कस करने वाले हैं. अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग का आपका जो लेक्चर नंबर है दैट इज़ 119 हियर. So this is your class 119 here. As you know that we had done your 118th class and reasoning की अगर हम बात करते हैं तो हमने सबसे पहले एनालॉजी की क्लास डिस्कस की है. उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन किया है. उसके बाद हमने सीरीज कॉम्प्लीशन किया है, ब्लड रिलेशन किया है, कोडिंग डिकोडिंग किया है. उसके बाद हमने सिक्वेंशियल टेस्ट वाला किया है. देन वी हैड डन द लास्ट टॉपिक जो कि हमने डिस्कस किया था आपके लॉजिकल वेन डायग्राम से पहले की अगर हम बात करते हैं तो हमने डायरेक्शन सेंस टेस्ट डिस्कस किया है. नाउ वी आर डिस्कसिंग LVD. दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ LVD which is your logical Venn diagram. So first we have to know with the logical Venn diagram here. तो वो logical Venn diagram क्या होता है that you have to understood here. Logical Venn diagram से this section deals with the questions which aim at analyzing candidates' ability to relate a certain given group of items and illustrate it diagrammatically. बेसिकली लॉजिकल वेन डायग्राम जो है ये आपका एक ऐसा सेक्शन है जो कि डील करता है आपके क्वेश्चंस के साथ, जो कि आपका एनालाइजिंग चेक करता है, कैंडिडेट्स एबिलिटी चेक करता है विद रिलेट टू द सर्टेन गिवन ऑफ ग्रुप ऑफ आइटम एंड इलस्ट्रेट इट diagrammatically here. Now talking about the logical Venn diagram here, that here are the few different types of Venn diagram with their implication made clear. Suppose you are given a group of 3 items, then so basically the candidate's ability to relate the certain given group and the item to illustrate diagrammatically, that you have to analyze these things. And even though there are the few different types of Venn diagram that are implicated implication made clear, and you are given a group of 3 or 2 that you have to be defined. Now I'm dealing with the 3 1 here. They are giving the 3 different items, and related to that you have to possess a Venn diagram and you have to solve those. Okay, बिफोर दैट अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे. एंड सेकेंडली अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी यूटिलाइजेशन भी कर सकें. Now talking about the first condition of logical Venn diagram कि किस तरह से आप logical Venn diagram को समझोगे और किस पैटर्न में आप उस logical Venn diagram को सॉल्व करोगे, बनाओगे. That what we have to understand here. If the item evidently belong to the 3 different group, अगर एक item है वो आपके 3 अलग अलग different types of different groups को belong करते हैं तो Venn diagram represented it would be. तो if the item evidently belong to the 3 different group, the Venn diagram represented like A is there, B is there and the C is there. There 3 all are in a different way. And if the item evidently belong the 3 different group, the Venn diagram represented it would be like this, like A, like B and like C here. Now I'm giving you an example of related to that items that evidently belong to the 3 different group. There the Venn diagram representing it would be here is that example is your doctor and engineer as well as the lawyer here. Now talking about the doctor, engineer and lawyer, these were the 3 different professions here. But related to the profession, if I'm talking about that they are the professions, but they are the 3 different professions here like A, B and C here. Okay, now talking about the next one we have here with reference to the doctor, engineer as well as the lawyer. So here you can see that the examples are doctor, engineer and a lawyer. These were the 3 different professions. So that we had represented like A जो हमारा है वो मान लो डॉक्टर है, B हमारा engineer है और C जो हमारा है वो lawyer. तो they are the 3 different professions and there are no relations between those. So these were the 3 items being no relationship to each other. So they are
presented by the three disjoint figure। क्योंकि इन तीनों में कोई रिलेशन है नहीं, इस वजह से ये एक डिसजॉइंट ऑफ फिगर की तरह बने हुए हैं। जस्ट लाइक एक ने अगर डॉक्टर को रिप्रेजेंट किया, बी ने इंजीनियर को, सी ने लॉयर को, तो तीनों अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन से तीनों अलग डिफरेंट डिसजॉइंट फिगर्स बने हैं। Now we are dealing with the second one here. If one item belongs to the class of the second and the second belongs to the class of the third। अब एक ऐसा केस हो सकता है जो तीनों डिसजॉइंट है, दोनों तीनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। पर दूसरा केस क्या हो सकता है, इफ वन ऑफ देम, इसमें से एक आइटम जो है वो क्लास सेकेंड को बिलोंग करता है, पहला वाला जो सेकेंड वाला है वो थर्ड वाले को बिलोंग करता है, देन द रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ द थ्री कंसेंट्रेटिक सर्कल। तो फॉर एग्जाम्पल कि पहला वाला दूसरे को बिलोंग करता है, दूसरा वाला तीसरे को बिलोंग करता है, तो इस तरह से अगर कोई रिलेशन बनता है, देन आपका जो फिगर बनेगा वो कंसेंट्रेटिक सर्कल की तरह बनेगा। अब कंसेंट्रेटिक सर्कल्स किस तरह के होते हैं, दैट आई विल बी हियर रिप्रेजेंटिंग यू। So this is the representation like examples of, for example seconds, minutes and hour। तो hours के अंदर minutes आते हैं, minutes के अंदर seconds आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखो कि जैसे मान लो A जो है वो हमारा सेकेंड है, ओके। सेकेंड जो मिनट के अंदर सेकेंड्स आते हैं, एंड देन ये सी हमारा आवर्स है। तो इससे आवर्स के अंदर मिनट्स आते हैं, मिनट्स के अंदर सेकेंड्स आते हैं। तो दिस इज द कैटेगरी हियर। क्लियरली द सेकेंड्स आर अ पार्ट ऑफ मिनट्स एंड मिनट्स एंड आर अ पार्ट ऑफ आवर्स। तो बेसिकली सेकेंड्स की बात करें, सेकेंड जो है वो मिनट का पार्ट है और जो मिनट है वो आवर का पार्ट है। सो द वेन डायग्राम वुड बी शोन विद अ सर्कल A representing the second here, circle B representing the minute here, and the circle C is representing the hour here। So अगर इस तरह का होगा कि लाइक वो ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है, तो इस तरह से आप कंसेंट्रेटिक सर्कल्स बनाओगे। अगर सारी चीज़ें डिफरेंट है तो फिर आप डिसजॉइंट फिगर्स बनाओगे, जो कि मैंने फर्स्ट केस में आपको बताया है। नाउ द सेकेंड केस इज कंसेंट्रेटिक सर्कल वाला, जिसमें आपका वन ऑन वन रिलेशन है। नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड वन, विच वी हैव अ थर्ड कंडीशन रिलेटेड टू द logical Venn diagram। If two separate items belongs to the class of third, they are represented by the two disjoint circles inside a bigger circle as shown here। बेसिकली अगर दो सेपरेट आइटम्स है, दो अलग अलग जो आइटम्स हैं वो एक ही क्लास को अगर बिलोंग करते हैं, तो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द दो डिसजॉइंट एंड एक बड़े वाले के अंदर। अब जैसे क्या, फॉर एग्जांपल है टेबल है, चेयर है और फर्नीचर है। तो फर्नीचर के ही अंदर आपका टेबल और चेयर आता है। तो टेबल चेयर तो दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, टेबल और चेयर अलग अलग है, बट आता तो कैटेगराइजेशन फर्नीचर के अंदर है, तो वो उसके अंदर आ जाएगा। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ ए है, ये बी है और ये पूरा बड़ा वाला सर्कल सी है। क्लियरली टेबल एंड चेयर्स आर सेपरेटेड आइटम्स बट बोथ आर आइटम ऑफ फर्नीचर। एक टेबल और चेयर दोनों अलग अलग आइटम है, दैट इज क्लियर, बट ये दोनों किसके अंदर आते हैं, फर्नीचर के अंदर आते हैं, दैट इज अ कैटेगरी ऑफ सी हियर। So they would be represented as in the figure with the circle A represented the table। ये A जो है वो आपका टेबल रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपका B है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका चेयर को, ओके। एंड ऑफ कोर्स द C सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग द फर्नीचर है। तो ये जो C है वो आपका फर्नीचर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। नाउ डीलिंग विद द नेक्स्ट वन, ये तीन कैटेगराइजेशन हो गई। अब हम चौथी जो कैटेगरी है, जिस तरह से हम वेन डायग्राम को, लॉजिकल वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं, पहला हमने देखा डिसजॉइंट था, सेकंड हमने देखा कंसेंट्रेटिक सर्कल्स बने थे, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, जो रिलेशंस दिखाते थे। अभी थर्ड वाला देखा जो कि दो डिसजॉइंट थे, एक बड़े वाले सर्कल के अंदर कैटेगराइजेशन में आते थे, लाइक टेबल, चेयर एंड फर्नीचर। नाउ वी डील विद द फोर्थ कैटेगरी ऑफ लॉजिकल वेन डायग्राम हियर इज, this is the fourth category here। If two items belongs to a class of the third or such that some items of each of these groups are common in relationship, and then they are represented by the two intersecting circles enclosed within a big circle। तो बेसिकली अभी तक के दो डिसजॉइंट हमने बनाए, दो अलग अलग कैटेगरीज थी, वो एक ही सर्कल के, वो बड़े बिग वाले सर्कल के अंदर आए थे, जो कि अभी हमने लास्ट डिस्कस किया है, थर्ड वाला। बट हियर इन्होंने बोला है दो ऐसे आइटम हैं जो कि एक दूसरे में उनमें वन और टू थिंग्स उसमें, या कुछ थिंग्स, some things in common, so that are intersecting and showing the some common thing, and that is big come under the big circle here, that is the sixth category। that is first is male, second is fathers and brothers। तो father ये है
और ये ब्रदर्स हैं। तो फॉर एग्जांपल फादर ब्रदर हो सकते हैं किसी के, और वो दोनों ही कंक्लूड कीजिए मेल ही होंगे, चाहे वो फादर हो चाहे वो ब्रदर हो, दोनों ही मेल हो सकते हैं। ओके, सो क्लियरली द सम फादर्स ओ मे बी ब्रदर्स, कुछ फादर्स जो हैं वो ब्रदर्स भी हो सकते हैं। सो द फादर्स एंड ब्रदर्स वुड लाइक रिप्रेजेंट टू द टू इंटरसेक्टिंग सर्कल, जैसा कि इंटरसेक्टिंग सर्कल जो कि आपके ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये इंटरसेक्टिंग सर्कल्स होते हैं। ऑल्सो बोथ द फादर्स एंड ब्रदर्स आर मेल, क्योंकि भाई पापा और लाइक ये अगर फादर है, ओके, ये आपके ब्रदर हैं, तो ये दोनों ही क्या होंगे, आपके सी कैटेगरी मेल ही होंगे, चाहे वो फादर हो चाहे ब्रदर हो, दोनों ही आपके मेल होंगे। सो द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुड बी शोन हियर विद अ सर्कल ए रिप्रेजेंटिंग द फादर, ए वाला जो है वो फादर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रदर को, एंड द सर्कल सी रिप्रेजेंट द मेल। तो ऑलरेडी चाहे वो फादर हो चाहे वो आपका ब्रदर हो, दोनों ही आपके मेल होंगे, दैट वाज द रिप्रेजेंटेशन हियर। Okay, now dealing with the next one, that is the fifth category and the fifth part of categorization of logical Venn diagram here that we have to discuss here. The fifth one is if two items are partially related to the third and are themselves independent of each other, they are represented by the three intersecting circles in a line. तो अगर दो आइटम ऐसे हैं जो कि पार्शली एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं और वो रिलेट भी कर रहे हैं थर्ड वाले से भी, तो उसको हमें इंडिपेंडेंट अगर तीनों को दिखाना है तो हम उसको लाइन से ही इंटरसेक्टिंग थ्री सर्कल्स दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डॉग्स, पेट्स और कैट की बात की जा रही है, तो पेट्स जो हैं वो आपके डॉग भी हो सकते हैं, कैट भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे डॉग्स, पेट्स एंड कैट सारे इंटरसेक्टिंग है। क्लियरली सम डॉग्स आर, सम कैट्स आर पेट, तो कुछ आपके डॉग्स और कुछ आपके कैट्स, दोनों ही आपके पेट्स हो सकते हैं, बट ऑल द पेयर्स आर नॉट डॉग्स एंड कैट्स। बट सारे ही पेट, अगर मैं बात करती हूँ तो सारे ही पेट आपके सिर्फ और सिर्फ कैट या फिर सिर्फ और सिर्फ डॉग नहीं हो सकते। कुछ पेट्स आपके डॉग भी हो सकते हैं, कुछ पेट्स आपके कैट भी हो सकते हैं, बट सारे के सारे आपके ना ही आपके डॉग होंगे ना ही आपके कैट होंगे। देयर आर मेनी मोर पेट्स हियर। ऑल्सो डॉग्स एंड कैट्स, अगर डॉग्स एंड कैट्स की बात करते हैं हम, ऑल्सो डॉग्स एंड कैट्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, क्योंकि डॉग्स और कैट भी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है और ज़रूरी नहीं सारे पेट जो आपके डॉग्स और कैट्स ही हों। सो द गिवन आइटम विल बी इन सर्कल ए रिप्रेजेंटेड द डॉग एंड सर्कल बी रिप्रेजेंटेड द पेट एंड सर्कल सी रिप्रेजेंटिंग द कैट। तो जो आपका ए बी और सी, ए और बी और सी रिप्रेजेंटेशन था, तो ए जो है वो डॉग्स को अगर दिखा रहा है, ओके, बी आपका पेट्स को दिखा रहा है, एंड सी जो आपका है वो आपका कैट्स को दिखा रहा है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। दिस इज द फिफ्थ कैटेगरी दैट वी हैड डिस्कस्ड हियर. Now we are dealing with the sixth category here, that the sixth category we have, if the three items are partially related to each other, they are represented as figure. अगर आपके तीन आइटम्स जो हैं वो आपके partially related हैं एक दूसरे से, तो आपका वो आपको पार्शियल किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, वो इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल क्लर्क्स है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, एजुकेटेड पर्सन है, ठीक है। तो ये आपका एक क्लर्क का कैटेगरी हो गया, एक एजुकेटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय का हो गया, एक आपका एजुकेटेड पर्सन का हो गया। जब ए और बी इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये इनका कॉमन है, एक ये इनको कॉमन है, ये बीच वाला जो है वो क्लर्क भी हो सकता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है, एजुकेटेड, तीनों ही चीज उसके अंदर हो। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन हियर. Now clearly some clerks may be government employee and some may be educated. तो कुछ ऐसे क्लर्क हो सकते हैं जो आपके एजुकेटेड भी हों और आपके ऑफ कोर्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हों. Okay, this is the category for those persons. Okay, and of course similarly some government employee may be a clerk and some may be educated, and also some educated person may be a clerk and may be a government employee. So the given item may be represented with the three different circles denoting the three different classes. So here कुछ ऐसे क्लर्क हो सकते हैं जो आपके एजुकेटेड भी हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो, या फिर ये कह सकते हो कुछ ऐसे एजुकेटेड पर्सन हैं जो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं और इवन दो दे आर क्लर्क, और कुछ ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जो कि एजुकेटेड हैं और क्लर्क भी हो सकते हैं। तो इस कैटेगराइजेशन के थ्रू हम इस पर्टिकुलर डायग्राम को बनाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. This is the sixth category of logical Venn diagram that we have to discuss here. Now we are discussing the seventh category of your logical Venn diagram here. The seventh category we have, if one item belongs to the class of second while the third item is entirely different from the two, then they may be represented by the figure. अगर हम बात करते हैं एक आइटम की, अगर एक आइटम जो है वो बिलोंग कर रहा है आपके दूसरे क्लास ऑफ आइटम के, और वाइल जो थर्ड आइटम है वो एंटायरली डिफरेंट है, ना उसकी कैटेगराइजेशन में है ना उसकी क्लासिफिकेशन में है,
ना ही उससे कुछ रिलेशन रखता है, तब आपको क्या करना है, देन दे मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर। लाइक फॉर एग्जाम्पल ए ये है, बी ये है और सी ये है, तो ए बी के अंदर सी आ रहा है, लाइक ए इज सिमिलर टू बी बट सी इज टोटली डिफरेंट एंड दैट इज मेड डिफरेंटली एंड सेपरेटली। अब इसकी बात अगर हम करते हैं तो एग्जाम्पल्स है इंजीनियर्स, ह्यूमन बीइंग एंड ऑफ कोर्स रैट्स। तो इंजीनियर जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग इंजीनियर्स हो सकते हैं बट रैट्स आर नॉट इवन दो इंजीनियर एंड इवन दो दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग हियर। सो क्लियरली ऑल इंजीनियर्स आर ह्यूमन बीइंग, जितने भी इंजीनियर्स होंगे आपके सब ह्यूमन बीइंग ही हैं। तो दिस इज द कैटेगराइजेशन, दिस वुड बी रिप्रेजेंटेड टू कंसेंट्रिक सर्कल, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स के थ्रू उसको रिप्रेजेंट कर दिया है। द क्लास ऑफ रैट इज एंटायरली डिफरेंट, कैटेगराइजेशन ऑफ रैट के बिल्कुल ही एंटायरली डिफरेंट है वो, इस वजह से उसको तो हम किसी कैटेगरी में रख ही नहीं सकते, ना ह्यूमन बीइंग के ना ही इंजीनियर के। From these two, thus these items would be represented in circle A representing the engineers. ये circle A जो है वो engineers को represent कर रहा है, circle B representing the human, this is the human being, and the circle C representing the rats, and जो circle C है वो आपका rats को represent कर रहा है. Okay, now these all are related to the seven categorizations related to the logical Venn diagram. Now we will discuss the eighth categorization of logical Venn diagram that we have to discuss, and all these categorization of logical Venn diagram is as important as that we are solving the questions. These were the method that I am giving you here because with respect to these logical Venn diagram, with respect to these relations that you have to draw in your coming questions that we have to discuss here. Now moving on with the eighth categorization of logical Venn diagram. All the logical Venn diagram are as important and you have to be very considerate about that. Now moving on with the next one, the eighth categorization here. Now this is the eighth categorization of logical Venn diagram is if one item belongs to the class of the second and the third item is partially related to these two, they are represented as. तो basically क्या होता है, अगर एक आइटम है वो दूसरे क्लास से तो बिलोंग करता है पर जो थर्ड आइटम है वो थोड़ा पार्शियली मतलब थोड़ा सा बिलोंग करता है, तब हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे लाइक फीमेल्स, मदर्स एंड डॉक्टर्स. तो फीमेल, मदर्स एंड डॉक्टर्स, दिस इज द कैटेगराइजेशन. तो यहाँ देखो अपने फीमेल का अगर मैंने एक कैटेगराइजेशन बनाया है तो उसमें मदर्स हैं एंड ऑफ कोर्स these were the categorized similar to the doctor here. Clearly all mothers are female, जितनी भी mothers होंगी, जितनी भी माँ है वो सारी females हैं. This would be represented by the two concentric circle. ये concentric circle से female और mother को represent किया है. But some females and some mothers can be doctor. कुछ mothers and कुछ females भी आपकी doctors हो सकती हैं. So the circle representing the doctor would interact with two concentric circles. Thus the diagram with a circle A representing the mothers, ये जो A वाला है ये आपका मदर्स का है. This is the B categorization, what it represent here, that B is representing the female, B is representing the females here, and the C circle representing the doctors. So C circle is representing the doctors here. तो इट मीन्स कि कुछ मदर्स जो हैं वो आपकी डॉक्टर्स हो सकती हैं, कुछ फीमेल्स जो हैं वो आपकी डॉक्टर्स हो सकती हैं, एंड जो जितनी भी आपकी मदर्स हैं वो सारी की सारी आपकी फीमेल है. दिस इज द कैटेगराइजेशन दैट वी आर सॉल्विंग हियर. Now talking about the next one that we have here, the ninth categorization of logical Venn diagram, and this is the last categorization of logical Venn diagram that you have to be considered about. So you can draw all the logical possibilities of logical Venn diagram so that you can easily accommodate with all these logical Venn diagram of that we had discussed here with the examples and with the figures, so that you will be getting easy to solve all these questions which we are doing in coming this session. The ninth classification is if one item belongs to the class of second and the third item is partially related to the second and they are represented as. तो एक item आपका दूसरे से रिलेटेड करता है सेकेंड आइटम से, दैट इज ग्रास ईटिंग एनिमल्स, काउस एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं कुछ जो घास खाते हैं वो एनिमल्स, काउस उनकी कैटेगराइजेशन है, और फ्लैश ईटिंग जो मांस खाते हैं वो ईटिंग एनिमल्स जो है. Okay, this is the representation and this is a separate representation here. Clearly cows are grass eating animals. तो clearly अगर मैं बात करती हूँ बिल्कुल साफ है कि cows जो हैं वो grass eating animals हैं, घास खाते हैं. So they would be represented in the two concentric circles, but some grasses eating animals are flesh.
ईटिंग एनिमल्स ऑल्सो। तो जो लोग जो एनिमल्स आपके घास खाते हैं वो आपके कुछ ऐसे भी हैं जो आपके मीट भी खाते हैं, यू नो दे आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स ऑल्सो। दस द वेन डायग्राम विद सर्कल ए रिप्रेजेंटिंग द काउज, ए जो है ये आपका काउस को रिप्रेजेंट करता है, वेयर द सर्कल बी रिप्रेजेंटिंग द ग्रास ईटिंग एनिमल्स, बी जो है वो आपका ग्रास eating animals also, and if I'm talking about the circle C, that is representing the flesh eating animals, that is a flesh eating animals here. So this is all the categorization of 9 categorization of your logical Venn diagram. Now we deal with the questions that we have to discuss with respect to the logical Venn diagram, as well as these 9 categorization that we have to discuss. So now moving with the first question for the session for related to the logical Venn diagram that we have to discuss here is as follows. So here the first question is, which of the following diagram correctly represents elephant, wolves and animals? ये आपको एक रिलेशनशिप बताना है, रिप्रेजेंट करना है, जो कि जिसमें एलिफेंट्स भी हैं एज वेल एज वॉल्व्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं। ये क्वेश्चन जो आपके में पूछा गया है वो आपके IAS के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स की कैटेगराइजेशन के अंदर वॉल्व्स भी आते हैं और एलिफेंट भी आते हैं। तो वी विल ड्रॉ लाइक दैट, एक बड़ा सा सर्कल बनाएंगे और एक, क्योंकि एलिफेंट और वॉल्स में कोई सच कनेक्शन है नहीं तो दो अलग अलग सेपरेट बनाते हैं। ये समझ लो वॉल्स है आपका, ये आपका एलिफेंट्स है, ओके, एंड दिस इज द कैटेगराइजेशन, दिस इज एनिमल्स हियर, ओके। इसको थोड़ा ब्लू से बनाऊंगी तो थोड़ा शायद आपको अच्छा लगे, ओके। तो ये आपका एलिफेंट, एक सर्कल एलिफेंट हो गया, एक आपका वॉल्व्स हो गया और एक आपका एनिमल हो, ये बाहर वाला एनिमल हो गया, क्योंकि एनिमल की कैटेगरी में एलिफेंट और वॉल्व्स होते हैं, क्योंकि एनिमल्स, एलिफेंट और वॉल्व्स में कोई एज सच कनेक्शन नहीं है, इस वजह से दोनों का अलग दिस जॉइंट सर्कल्स बनाया है, एंड दैट कम्स अंडर द एनिमल्स हियर, एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द IAS क्वेश्चन पेपर. Now moving on with the next one, that we have a question number 2 here. Which of the following Venn diagram correctly illustrate the relationship among the classes? अब classes बनानी है, क्या है, carrot है and then food है and vegetables है, carrot, food and vegetables. Now this is new, and this is of course you have to know about. This is the carrot. अगर मान लो ये carrot है, carrot comes under what? Vegetables, I think all of you know. And vegetables comes under what? All the vegetables comes under the what category? That is of food, okay. So this is to be very clear. अगर कैरेट जो है, कैरेट वेजिटेबल्स की कैटेगराइजेशन के अंदर आता है और सारी वेजिटेबल्स आपकी फूड है, तो ये आप इस तरह से कह सकते हो, फूड्स के अंदर वेजिटेबल्स आता है और वेजिटेबल्स के अंदर कैटेगराइजेशन कैरेट आती है, एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द IAS क्वेश्चन पेपर सेम, ओके। तो इस तरह से आपको सोचना है, तभी आप कर पाओगे। मैंने ऑलरेडी 9 कैटेगराइजेशन ऑफ लॉजिकल वेन डायग्राम डिस्कस कर लिया है। आई थिंक अगर आपने इसको कंसिडर किया है, उसको डायग्राम बनाया, उसको अच्छे से लिखा है विद एन एग्जांपल, तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। आई होपफुली यू विल ड्रॉ ऑल दीज डायग्राम, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे पहले से नहीं किया है, मैं आपके सामने ही बनाऊंगी। Now the third one we have woman, mother and widows. तो woman, mother and widows, तो woman, mother and widows बनाते हैं, चलो कोई बात नहीं। फर्स्ट we will women's and जो भी जितनी भी सारी women's हैं, तो भाई सारी women's तो वो आपकी mothers होंगी, तो ये तो मैं बना देती हूँ, ये woman हो गया भाई, okay, this is the mother, because all mothers are women, okay, ठीक है, all mothers are women, ये बन गया। Now widows भी है, तो all mothers are women, but some mothers are and some women can be widows, some mothers and some women can be widows, okay, clear. Okay, and in the categorization of elements and worker, here elements and verbs bear no relationship in each other, then both of them are animals categorization that we had drawn here. With related to the carrots here, the all carrots are vegetables and all vegetables are food, so this why we had represented here. And all mothers are, all mothers are women, and some mothers and some women can be widows, so though although we had drawn this, ओके। तो इसी कैटेगराइजेशन की तरह आपको भी ड्रॉ करना है, एंड आपको भी इसको बहुत अच्छे से बनाना है, सो दैट यू विल बी गेटिंग ऑल द आंसर्स एज क्लियरली एज व्हाट वी हैड डन हियर. Now the next one is your authors, teachers and men. Authors, teachers and men की अगर हम बात करते हैं तो we are drawing here like this. एक आपका, चलो author का बना लेती हूँ. This is the teachers category and this is of course men.
अब ये क्यों? क्योंकि जो ऑथर्स है वो टीचर भी हो सकता है, वो मैन भी हो सकता है, विद हैविंग दिस इंटरसेक्टिंग पार्ट। ओके, कुछ ऑथर्स टीचर्स भी हो सकते हैं, कुछ ऑथर्स मैन भी हो सकते हैं, कुछ मैन टीचर्स भी हो सकते हैं, कुछ मैन आपके ऑथर भी हो सकते हैं, कुछ मैन आपके ऑथर टीचर्स दोनों हो सकते हैं, कुछ टीचर्स ऑथर्स हो सकते हैं, कुछ टीचर्स मैन हो सकते हैं, कुछ टीचर्स आपके ऑथर मैन एज वेल एज दे आर ए टीचर. So these are the belonging category, because in some, if I'm talking about the some authors, okay, so some authors can be teacher, some teachers can be man, some authors can be men. So the given items of the partially related to each other, they are done here. Now moving on to the next one that we have related to the fifth question here, and the question is sparrow, bird and mice. Sparrow, bird and mice. That first we'll draw the categorization of bird here. This is the bird categorization. Bird के अंदर आपके आते हैं sparrows. Okay, this is the category of sparrow here. एंड उसके बाद तो माइस की बात करती हो तो माइस तो बिल्कुल डिफरेंट है भाई, तो ये माइस का आ गया. ओके, तो बर्ड्स कैटेगराइजेशन, बर्ड्स के अंदर स्पैरो होता है, या कह सकते हो आप स्पैरो को भी हम बर्ड्स कहते हैं, दैट स्पैरोज आर रिलेटेड टू द बर्ड्स ओनली एंड द माइस इज नॉट रिलेटेड टू द ईदर स्पैरो और ईदर बर्ड्स हियर. So all the sparrows are bird, and but mice is entirely different, so that we had not done here. Okay, now moving on with the next one, that we have your sixth question for the session as well. आई हैव यू हैड गॉन थ्रू विद द क्वेश्चंस इन एन ईजी वे, जिस तरह से मैं करा रही हूँ. प्लीज़ अब मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओ कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एंड हाउ मच यू इम्प्रूव्ड इन रीजनिंग स्पेशली. द क्वेश्चन नंबर 6 इज टी, कॉफ़ी एंड बेवरेजेस. टी, कॉफ़ी एंड बेवरेजेस. तो भाई टी, कॉफ़ी एंड बेवरेजेस की बात करती हूँ तो पहले तो बेवरेजेस बना लेती हूँ, उसमें एक टी बन गया, एक कॉफ़ी, क्योंकि टी और कॉफ़ी में तो कोई एज सच रिलेशन है नहीं. ओके, तो बट tea and coffee both word comes under the beverages only. So where the tea and coffee are the two separate, that are unrelated items here, and but they both of them are beverages. That's why we had drawn this, the two disjoint circles, and it comes under the bigger one. Okay, that comes under as a beverages here. Now the seventh one is boys, students and athletes. Boys, students and athletes. So that what we have to do here is, चलो बनाते हैं boys. बॉयज स्टूडेंट्स हो सकते हैं भाई, स्टूडेंट्स जो है वो एथलीट्स भी हो सकते हैं, तो इसलिए बॉयज, स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द कैटेगरी ऑफ athletes. Okay, so boys, students and athletes, this was the categorization here. Some boys are students, some students are athletes, some boys are athletes, and some of the that are given and are partially related to each other here. Okay, so this is the, some boys were students, some boys are athletes, some students are athletes, some students are boy. So this is all what categorization that we have to draw here. Now talking about the next question, this is the question number 8 for the session is the relationship among the given three classes. अगर हम relationship बात करते हैं among these three classes के, तो judge, thief और criminal. Judge, thief और criminal, I think this is all set here. Criminals के criminals के अंदर thief आता है, तो criminal जो होते हैं that could be thief here, this is the thief here. बट जज इज ऑल डिफरेंट, ऑल एट ऑल. यहाँ पे जज का क्रिमिनल के वो उसके डिसीजंस लेते हैं, बट क्रिमिनल्स के अंदर सिर्फ जज थीफ आएगा. जज इज अ सेपरेट वन हियर, बिकॉज ऑल द थीव्स आर known as criminal, but the judge is entirely different here. So we had done here this here, and this question has been asked in the SCRA question paper, so this is also as important as that what we had done here. Now this is the ninth question here, the relationship among the languages French and German. The languages French and German, I think this is easy for you all, because ये है आपका एक पूरा categorization मैंने बना दिया है languages का. Okay, this is the languages and they are the two different language. एक हो गया आपका French हो गई, okay, और एक आपकी हो गई German. तो फ्रेंच और जर्मन क्योंकि दोनों लैंग्वेज हैं, तो इस वजह से वो दोनों एक अंदर डिस्जॉइंट फिगर्स बने, और ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस का कोई एक दूसरे से कनेक्शन नहीं है, इसलिए ये फ्रेंच हो गया, एक आपकी जर्मन होगी. बट दीज टू आर लैंग्वेजेस, सो दिस कम्स अंडर द बिग सर्कल दैट इज नोन एज लैंग्वेज हियर, बिकॉज बोथ फ्रेंच एंड जर्मन आर लैंग्वेजेस, बट बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सो दैट वी हैड मेड हियर. Now the moving on with the next question, that is the 10th question of the session, the relationship among the classes. आपको relationship बनाना है among these classes, and the relationship is here that you can see. Tennis fans
cricket players and students. Tennis fans, cricket players and students. This question has been asked in the IAS question paper, so this is as well as that much important here. So we must draw the diagram, draw the one diagram here. As of this is the cricket player. Okay, I will write full cricket player here. This is the categorization of student, and this is your tennis fans. Okay, so here some students can be a cricket player, some cricket players can be a tennis fan, some students are tennis fans, and so the given items are partially related to each other here, where some students could be a cricket player as well as they have a tennis fan also, and some cricket players are students as well as they are tennis fans, and some tennis fans would be a cricket player, and of course it would be a students also. This question has been asked in your IS question paper, and that is also too important. You can also go through with that. Now moving on with the next one that we have is related to the 11th question of the session. Now the question is 11th question, the three classes. अब यहाँ पे three classes हैं, rhombus है, quadrilaterals है and polygons है. तो rhombus है, quadrilaterals and polygons, ये तीन categorization है. तो rhombus, quadrilateral, like we are meeting here. सबसे पहले तो हम rhombus बनाएंगे. Okay, we are doing here. उसके बाद rhombus के ऊपर आएगा आपका quadrilaterals के अंदर आता है आपका rhombus here. So we are quadrilateral that we are making here, and then उसके बाद हमारा आएगा then we come under the polygon, क्योंकि polygon जो है polygon के अंदर quadrilaterals आते हैं, quadrilaterals के अंदर आपके rhombus आते हैं. In all total you can say that all rhombus are quadrilateral and all quadrilaterals are polygon. So all rhombus are quadrilateral and all quadrilaterals are all polygon. That what it represented here, this question. And then I'm moving on to the next question, that is the question number 12 here, and the question is tables, chairs and furniture. Tables, chairs and furniture, I think मैंने अभी इसी के जैसा एक आपको एक जब मैं कैटेगराइजेशन 9 कैटेगराइजेशन ऑफ लॉजिकल वेन डायग्राम बता रही थी, तो मैंने आपको टेबल्स, चेयर्स एंड फर्नीचर से रिलेटेड एक वेन डायग्राम भी बनाया था, जो कि क्वेश्चन आपका SBI PO के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है. तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन एंड यू हैव टू, आई थिंक यू हैव टू ड्रॉ दिस बाय योर साइड. नाउ द टेबल्स, चेयर्स एंड फर्नीचर्स की बात करती हूँ. तो फर्नीचर्स एक ये है, ये फर्नीचर्स है, और फर्नीचर्स के साथ आपके अंदर एक टेबल है, एक चेयर है. क्योंकि टेबल और चेयर का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, इस वजह से ये दोनों अलग सेपरेट डिसजॉइंट बनेंगे, बिकॉज ये दोनों ही आपके फर्नीचर कैटेगरी के आते हैं. तो दैट कम्स अंडर द फर्नीचर कैटेगरी. टेबल्स एंड चेयर्स आर अनरिलेटेड आइटम, बट both are the items of furniture, so that the diagram has been shown here. Now moving on with the next question, that is the question number 13 here, and the question is tie, shirt and pantaloons. Tie, shirt and pantaloons की अगर हम बात करते हैं, this question has been asked in the SBI PO question paper. This is all the same. तो tie, shirt और pantaloon की अगर हम बात करते हैं, तो भाई इस तीनों में कोई भी रिलेशन नहीं है. तो टाई अलग है, दिस इज डिफरेंट. शर्ट अलग है, दिस इज ऑल्सो डिफरेंट. एंड पैंटलून्स भी अलग है, दिस इज ऑल्सो डिफरेंट. यहाँ पे 3 डिसजॉइंट आपके सर्कल्स बनेंगे. Tie, shirts and pantaloons are separate items, entirely different from each other. That's the reason we had made here. As of this is also important, that's the reason I had not made the Venn diagram here to represent you, क्योंकि उससे आप उसको पढ़ लोगे, समझ लोगे, फिर अगर नहीं समझ में आएगा तो आई थिंक फिर आप Venn diagram का कोई भी लॉजिकल Venn diagram का क्वेश्चन इजीली नहीं कर सकते हो. इस वजह से मैं आपके सामने यहाँ पे डिफरेंट Venn diagrams बना रही हूँ with related to the questions. So please go through with the questions, and even though you can try by your side so that you are able to do that or not. Talking about the next question, this is the question that has been asked in the SBI PO, as I told you. This is the 14th question. The question is dogs, pets and cat. I think dogs, pets and cat का भी Venn diagram मैंने आपको बताया है. अभी जो categorization बताया आपको 9 categorization, उसमें ये भी question क्योंकि SBI PO में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे आपको समझाने के लिए बनाया. वहाँ पे तो बना था, बट यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा रही हूँ क्योंकि ये question भी SBI PO में पूछा गया है, and that is also too important. अब dogs and pets and cat की अगर हम बात करते हैं, तो डॉग्स और पेट जो है वो दोनों डिफरेंट है, उन दोनों का एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं है. ओके, बट दीज
2 आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पेट्स, क्योंकि पेट्स आपके डॉग भी पेट्स हैं और कैट भी आपके पेट्स हैं. तो दिस इज द कैटेगराइजेशन एंड दिस इज हैज बीन आस्क्ड इन द SBIPO, whereas dogs and cats are entirely different from each other, and but they are all pet animals, so that's the reason we had put and draw the diagram like this. Now moving on with the next question, that is your question number 15th question and the last question for the session as well. The question is brinjal, मीट एंड वेजिटेबल. तो ब्रिंजल और वीट एंड वेजिटेबल की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिंजल और मीट और वेजिटेबल की बात करेंगे तो ये भी क्वेश्चन जो है वो आपका SBIPO के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है एंड दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो ब्रिंजल वीट और वेजिटेबल की बात करते हैं तो दिस इज ब्रिंजल. ब्रिंजल ब्रिंजल जो है वो आपका एक वेजिटेबल है, तो ये वेजिटेबल है. ओके, एंड ऑफ कोर्स मीट इज़ अ डिफरेंट कैटेगरी, दैट इज़ नॉन वेज, सो ये आपका अलग सेपरेट रहेगा. तो इसलिए यू कैन से दैट ब्रिंजल इज अ वेजिटेबल बट मीट इज एंटायरली डिफरेंट. सो दिस इज द कैटेगराइजेशन व्हाट वी हैड ड्रॉन हियर. सो जैसा कि मैंने आपको बताया 9 कैटेगराइजेशन मैंने वेन डायग्राम के बना लिए हैं, बता दिए हैं आपको, ऑलरेडी समझा दिया है. ऑलरेडी वी हैड डिस्कस्ड 15 क्वेश्चंस ऑफ रिलेटेड टू द लॉजिकल वेन डायग्राम. तो प्लीज़ आप इसको गो थ्रू करो, सारे डायग्राम को एक बार प्रैक्टिस करो. यू कैन राइट इट डाउन ऑल दिस diagram even though by their examples and their figures, so that 9 figures, I don't think so that takes that much time to write all these things. You just take a few minutes and of course then after that you can try these 15 questions. In the next class I will be trying to complete logical Venn diagram, at least approx more than 60 questions related to this logical Venn diagram with these figures only what they had asked you in the competition paper. But before that you have to be go through with all the diagrams and all the things that we are doing here, because इसके बिना तो आप नहीं कर पाओगे, that is for sure. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे. एंड सेकेंडली अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारा वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो. उसके साथ साथ रीजनिंग में हमने एनालॉजी का टॉपिक कवर अप कर लिया है, क्लासिफिकेशन कर लिया है, सीरीज कॉम्प्लीशन कर लिया है, कोडिंग डिकोडिंग कर लिया है, ब्लड रिलेशन कर लिया है, आपका सिक्वेंशियल वाला कर लिया है, देन वी हैड डन डायरेक्शन टेस्ट ऑल्सो. और उसके साथ साथ हमने और सारे टॉपिक्स कवर अप कर लिए हैं. तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट मैंने 9 और 10 टॉपिक्स कवर अप कर लिए हैं. दिस इज़ द 9th टॉपिक आई थिंक, एंड हमने ऑलरेडी 8 टॉपिक ऑलरेडी कवर अप कर लिया है. लॉजिकल वेन डायग्राम 9 टॉपिक है आपका, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि एनालॉजी से मैंने स्टार्ट किया था. नाउ वी हैड अराइव्ड एट 9th टॉपिक. अभी इसके बाद भी है, मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, तो उसमें रीजनिंग्स में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं अलग अलग डिफरेंट. अभी इसके बाद भी ऐसे ऐसे टॉपिक्स आएंगे जो शायद आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, बट दे हैड आस्क्ड इन द कंपटीशन पेपर. सो इसलिए वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको गो थ्रू करो, इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लो, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है, चाहे आप कंपनी में आप इंटरव्यूज देते हो या उनके कंपटीशन पेपर को कलेक्ट करते हो तब भी रीजनिंग पूछी जाती है, गवर्नमेंट करते हो तब भी आपको पूछा जाता है. इवन दो दे आर जस्ट टेस्ट यू थ्रू रीजनिंग कि आपकी कितनी मेंटल कैपेबिलिटी है, आप कितना मेंटली स्ट्रांग हो और आप कितना उसको एक्यूरेट उसके सोल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हो. तो इसलिए ये देखो, एक इंग्लिश वर्ड तो अलग ही होता है, उसके लिए मैंने इंग्लिश क्लासेस ऑलरेडी आपको वोकैबुलरी दी है, शुरू कर दी ऑलरेडी, उसकी 10th क्लास हो रही है. बट रीजनिंग में हमारी बहुत क्लासेस हो गई हैं, दैट इज़ ऑफ अप्रॉक्स 136 क्लास, तो वो तो हो ही गई है. बट अगर आप एक बार स्टार्ट करोगे तो कभी भी लेट नहीं होता, बट आप स्टार्ट करोगे तो आई थिंक यू कैन गो थ्रू विद ऑल दीज. एंड प्लीज़ लाइक शेयर subscribe our channel. Thank you, hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give your suggestion on a comment box. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.